नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें गठबंधन के नेता का चयन किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि गठबंधन का नेता ही उपराज्यपाल से मिलकर आगे की प्रक्रिया तय करेगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना सरकार का सबसे पहला दायित्व रहेगा और इसके लिए पहले ही कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि 370 पर भी सरकार की जद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी ओर उमर के गुपकार आवास पर आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी भी पहुंचे और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी। गुपकार आवास पर आज उत्सव जैसा माहौल देखा गया और अब्दुल्ला परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। I am also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us, it will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. Whichever Chief Minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government would be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है राय अमल और आगे भी यही रहेगा। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स से बात करेंगे, तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहाँ उनको मुबारकबाद देने आए थे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर से ये मेंटेन करता आया हूँ कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। I don't find any such problem arising due to that. अनएम्प्लॉयमेंट पहली चीज़, अगर नौजवान को आगे कोई अपना फ्यूचर नहीं दिखता, कोई काम नहीं उनके लिए, तो क्या करेंगे वो? अब देखिए, लोग पूछते हैं कि ड्रग्स का मसला यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर नौजवानों को दबाया गया है। उनको कुछ दिया गया नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं दी जाते इनको, काम है नहीं, उल्टा इनको जेल में फेंकते हैं यूएपी और पीएसए के तहत। तो पहली चीज़ तो बेरोज़गारी पर हम पूरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे नौजवान जेल में भरे गए हैं, उन पर दबाव डाला गया है, उनको हम निकालेंगे, तो पीएसए को हम हटाएंगे, खेल जो मैदान है उनको देंगे, पूरे तरीके से काम देंगे। पढ़ाई सबसे नौजवान खासकर मेरे लिए, चूँकि मैंने जितना भी मैं पढ़ा हूँ, मुझे पता है जो भी आज तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो पढ़ाई के ज़रिए हुआ है। तो हमें नौजवान को जिस तरीके से शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को पढ़ाया। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें बहुमत मिलने पर हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और बदहाली है। जम्मू से भले ही भाजपा को बहुमत मिला है, लेकिन नई सरकार जम्मू सूबे की उम्मीदों का भी पूरा ख्याल रखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू के लोग जब तक भाजपा पर विश्वास करते रहेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जम्मू के लोगों को नफरत से निकलकर मोहब्बत की रस्सी थामनी होगी, और ऐसा होने से ही जम्मू कश्मीर को बचाया जा सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे चाहते हैं कि उमर सीएम बने, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहाँ इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायदे आज़म कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। तो क्या उमर साहब ही अभी सीएम बनेंगे? जनाब, मैं तो चाहूंगा कि वो बने। फाइनल फैसला जब पार्टी की मीटिंग हुई वो होगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खुद ये वादा कर चुकी है और सरकार बनने के बाद उस पर हाल में दबाव बनाया जाएगा। और रविंदर शर्मा ने जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी दूर करने के लिए 1,00,000 नौकरियां देने के साथ साथ टेलीविजनों के मुद्दों को हल करने और दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा शुरू करवाने की बात कही। लेकिन पहली प्रायोरिटी तो यह है, जो हमने कहा कि स्टेट रेस्टोर होनी चाहिए। गवर्नमेंट बनने के बाद पहला प्रयास ये होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार वादा किया और वादा खिलाफी की। स्टेट हुड के अंदर ये चुनाव, जहाँ हमारा स्टेट का दर्जा होता है तो चुनाव ऐसे ही होने थे, लोगों ने ऐसे ही वोट डालने थे, मशीनों को दबाना था, तो यहाँ स्टेट की असेंबली चुनी होती। तो पता नहीं सेंटर ने ये शर्तें क्यों रखी, और वो देना नहीं चाहते थे। जब दबाव, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हर जनता की यही थी, और बीजेपी को भी कहना पड़ा कि सरकार के बाद हम स्टेट हुड देंगे। अब तो उन्होंने फिर कहा है, तो मुझे लगता है उनको खुद ऐलान कर देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं करते तो कहना काम कांग्रेस का, प्रेशर कानून का यही होगा, कैबिनेट में फैसला करेंगे, जरूरत पड़ेगी असेंबली में लेजिस्लेट करेंगे और हम स्टेट मांगेंगे, ताकि पावर तो हों। अभी तो पावर ट्रांसफर की भी नहीं है।
चीफ मिनिस्टर के पास। दूसरा मुलाजमत का है, 1 लाख नौकरी हमने कहा है, चुनौती है, उन्हें देनी है। डेली वेजेस है, नीड बेस्ड है, वो तमाम काम। दरबार मूव हमने कहा जम्मू में फौरी राहत देंगे। ये लादी बात है कि जम्मू ने उतना वोट हमको नहीं दिया, लेकिन हमारा तो काम है, जम्मू कश्मीर दोनों खितों का काम करेंगे। विधानसभा चुनावों में डोडा से हार का सामना कर चुके डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मजीद वानी ने जम्मू कश्मीर में गठित होने वाली नई सरकार से कई आशाएं जताई हैं। अब्दुल मजीद वानी ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरकर उनकी हर समस्या का हल करेगी। उन्होंने इन चुनावों में उनके हक में वोट डालने वाले लोगों को भी तहे दिल से आभार जताया है। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जितने भी लोग जिन्होंने जीत हासिल की, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं निज़ाम के साथ। तो निज़ाम को चाहिए कि ईमानदारा और जानदारा हिसाब से वो लोगों के साथ इंसाफ करें और निज़ाम मैसर करें, जिससे लोगों की ये मुश्किलात हैं जो 10 साल से आज तक चली आ रही हैं, जहाँ अपने लोग नहीं थे, जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जहाँ निज़ाम नहीं था, निज़ाम सिंगल विंडो एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो अब अगर अपने लोग चुन के भेजे हैं तो अब यही है कि इस निज़ाम को अब जिम्मेदारियां हैं कि लोगों को जिन लोगों को इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ मैसर करना, लोग जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया करना, रोज़गार के साधन तैयार कर रहे, और बेरोज़गार नौजवानों जो गलत सिमत पे पड़ गए हैं उनके लिए रोज़गार का एक ज़रिया, एक मुतबादिल इंतज़ाम करना ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। कठुआ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई ने आज मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कश्मीर में उम्दा प्रदर्शन करने पर पार्टी की कठुआ इकाई ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर साहब, लेकिन हम लड़े, हमने हिम्मत रखी, हम लोगों में गए, लोगों का जो भी फैसला हुआ हमें मंजूर है के नाते, एक छोटे से वर्कर होने के नाते हम लोगों की खिदमत करेंगे और आने वाले जो 5 साल हैं उसमें हम लोगों की भरपूर सेवा करेंगे। और हम फिर से अभी नया एक अभियान शुरू हम करने जा रहे हैं कि हर गांव में, हर जगह पे हम फिर से, जिस तरह से हमारी कैंपेन शुरू हुई थी, हमारी जितनी भी कमियां हैं हम उनको दूर करने की कोशिश कर, जो हमारे मैनिफेस्टो में था वो पूरा होगा। लोगों को अच्छी सरकार जो है वो अभी मिलने जा रही है, इसलिए हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र के उत्तरसू जंगल से टेरिटोरियल आर्मी के जवान का शव बरामद किया गया। नौगाम निवासी जवान हिलाल अहमद भट्ट को मंगलवार शाम को आतंकियों ने कोकरनाग के शांगस इलाके से किडनैप कर लिया था। पुलिस को उसके लापता होने की सूचना मिलने पर व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इसी दौरान उसका शव बरामद होने से वहां सनसनी फैल गई। आतंकियों ने हिलाल अहमद के साथ एक अन्य जवान को भी किडनैप किया था, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर फरार हो गया, जिसने ये सूचना अपने अधिकारियों को दी थी। पुलिस ने इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जवान कैसे लापता हुआ और उसकी मौत के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं। जवान की मौत की सूचना से उसके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही जवान के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दुख बच्चे गो गया ड्यूटी ऑलरेडी वन आमुत काल घर पत् द्राव रात सुबह पत् अमिस पे क्या जुल्म गो यह क्या तुलन यह क्या मारन तरन फिक्री यह क्या दलील बाकी घर क्या हालत घर बिचार बच्चे जस खानदारिन बड़ बब सह बिचार कैंसर पेशेंट नान सत बेमार बस यह मोल मोज सह बिचार मजूर पेश
सो कर क्या द्राव तमिस नश सो पकन पन गरकन वारिया कह गामस वनकस तंजी कत तावन पेम अलाग वनकन अहन यह कम चीज़न कोर यह क्या बस युतु बाकी नहीं कहीं क्या जाओ मार। इसकी लाश कहीं से बरामद हुआ, हमें बहुत दुख है। जब हमने सुना, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, छोटे छोटे परिवार है इसका बच्चे, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके परिवार का खास ख्याल रखा जाए और इसको इंसाफ मिलने चाहिए। बाकी ये बहुत शरीफ लड़का था, पता नहीं ये वजूहत क्या हुआ, इसकी लाश अभी मिला है, क्या वजूहत है इसकी डेथ क्यों हुआ है, तो बाकी हमें कुछ पता नहीं है। हमें जो अभी सुना है तो इसीलिए हम गांव वाले इधर जमा हुए हैं, हमें बहुत दुख है। कितना बहुत पूरे इलाके को दुख है इस वक्त। किस तरह का इंसान था? बहुत शरीफ लड़का था, छोटा बच्चा था, अभी इसका 2-3 साल हो गया आर्मी में बस। तो बीमार माँ बाप भी? दादा वादा सब, माँ नानी वानी सब बीमार है इसके घर में। पता नहीं ये क्या वजूहत हुआ, क्यों इसको कहीं से मार दिया गया, पता नहीं। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पर ये हिलाल अहमद भट्ट रहता था। मैं इसका पड़ोसी हूँ। कल हमने सुना था यही कि ये बेचारा घर से निकला है ड्यूटी के लिए, और कल ही हमने न्यूज़ सुनी है कि इस बेचारे को अगवा किया गया है। लेकिन आज जो ही इसकी न्यूज़ आ गई फेसबुक पे, तो हमने सुना है कि इसकी बॉडी रिकवर की गई है। पता नहीं है किन लोगों ने इसको मार दिया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि इस ये जो इसका के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन लोग मां कालरात्रि की आराधना में डूबे हुए हैं और मंदिरों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के मंदिरों में मां के जयकारों से गूंज रहे हैं और जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में बाहु फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, जहां मंदिर कमेटी की ओर से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। मां काली के मंदिर की छटा देखते ही बन रही है और यहां जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। जय माता की। आज 7वां नवरात्र जो है माँ कालरात्रि के निमित्त, माँ कालरात्रि आप सब भक्तों का कल्याण करे। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ते हारिणी, जय सर्वगते देवी माँ कालरात्रि नमोस्तुते। अंधकार का नाश करने वाली माँ कालरात्रि माता दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। 7वें नवरात्रि में माँ के स्वरूप की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इनका श्याम वर्ण है, इनके सिर के बाल बिखरे हुए तथा गले में बिजली की भांति चमकती हुई माला धारण की हुए है। माता का यह रूप अपने भक्तों के शत्रु समूह का दमन करता है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ के से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है और नीचे वाले हाथ से अभय मुद्रा में अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, निर्भय प्रदान करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ भगवती की कालरात्रि की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि विशेषतः जो भी कार्य ना बन रहे हो, जहाँ शत्रु समूह से कोई पीड़ित हो, तो माँ कालरात्रि जो है प्रसन्न होकर उनके कार्य को सिद्ध करती है। 7 कन्याओं का पूजन कर संध्या काल में आज के दिन विशेष पूजा माँ कालरात्रि की की जाती है और माँ कालरात्रि आप सबों का कल्याण करे। जय माता की। देखिए, जय माता दी। आज माता रानी का 7वां नवरात्र है और 7वें नवरात्रे में माता कालरात्रि के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मनोकामना भक्तजनों की है माता रानी सबकी पूर्ण करे और जो भी जम्मू वासी जितने भी अपने घर बैठे हुए हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए घर से निकलें बाहर, वो माता रानी के दर्शन करने के लिए बाबे माता में आएँ। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। और जो कल के जो जम्मू कश्मीर के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें जो भी सरकार बने उसमें वो जम्मू का भला हो, कश्मीर का भला हो और जम्मू वासियों का भला हो। हम यही चाहते हैं कि जैसी भी सरकार आए वो सभी के हित के लिए काम करे और जम्मू तरक्कियाँ करे और हमारा भारतवर्ष भी प्रगति की ओर बढ़े। जय माता दी। माता रानी के चरणों में आओ, सिर झुकाओ और माता के दर्शन करो। हमारे भाग्य में यही दर्शन होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत सच्चे दरबार की जय। इतने मान्यता रखता है कि हम खुद इनके चरणों में रहते हैं, बाबे माता के चरणों में रहते हैं, बाबे में रहते हैं। ये हमारे खुश नसीब है कि हमें यहाँ पे जगह मिली है और बाबे में मिली है। और मैं तो बोलता हूँ हर बंदे को मिली यहाँ पे और हर कोई रोज़ आए यहाँ पे।
बहुत शांति से दरबार की जाए। जी, माता बावे वाली की कृपा से सब भक्तों को मुबारक हो नवरात्रों की। सभी भक्तों से यही निवेदन है, आशा है कि आप भी नवरात्रे रखो, माँ बावे वाली से वर मांगो। माँ बावे वाली कभी किसी को खाली नहीं भेजती है, सबकी आशाएं पूरी करती है। जिनकी औलाद नहीं होती है, माँ बावे वाली उनको औलाद भी देती है। माँ कभी निराश नहीं अपने भक्तों को भेजती हो। मैं नवरात्रों में यही बोलूँगी, जय माता दी, जय माता। वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा का कहना है कि उसका जम्मू सूबे में से 35 सीटें हासिल करने का लक्ष्य भले ही पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इन चुनावों में जम्मू से जहां कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है, वहीं भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3% ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस को अब मोहब्बत की दुकान का शटर नीचे गिरा देना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों ने उसे नकार दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा विपक्ष की भूमिका पर जिम्मेदारी से निभाते हुए देश हित में काम करने को प्रतिबद्ध है। हमारी जो अपेक्षा थी, जम्मू जो खित्ता है वहाँ से 35 सीटें आईं, उससे कुछ हम दूर रहे, लेकिन सबसे बड़ा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का है, जो पहले नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उससे हम कहीं 3% वोट हमने ज़्यादा लिया है। और कांग्रेस ने भी जम्मू से कांग्रेस का सोपड़ा साफ हुआ है, और कांग्रेस को अब मोहब्बत की दुकान का शटर नीचे गिरा देना चाहिए। जम्मू के लोगों ने एक बार फिर सोच लिया है कि देशभक्तों को वोट दिया जाए, गद्दारों को नहीं, इसलिए कांग्रेस को नकारा है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं जो भी कोई सरकार बनाए वो जम्मू कश्मीर के लिए विकास की राह पर चले। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने बनाई है उसको कायम रखने का प्रयास करे, ना कि जो चुनावी चौंचले थे, धारा 370 हटा देंगे, पत्थरबाजों को छोड़ देंगे, इस प्रकार की अगर कोई कोशिश की होगी तो उसको तो हम पूरा विपक्ष का काम करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। देश हित में जो भी काम होगा उसको किया जाएगा। देखिए, उनका जो बयान है, उन्होंने ये कहा है कि 370 वो अभी 50 साल वेट करेंगे कि केंद्र में कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो चेंज करेगी। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने अपना बड़ा नरम रुख रखा है इसके प्रति कि हम अगली सरकार आने का वेट करेंगे, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी, शुक्रिया सर। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।